میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان ہے اور بہت بڑا مہربان ہے۔ ہم بات کریں برج قوس کی۔ برج قوس کی بات کرتے ہیں سیجیٹیریس والوں کی، اور ہماری سیریز میں ہم بیسیکلی 2025 کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن 2025 کی جو بیس ہے 2024 اور 23 اس کو بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور 23 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو 20 اور 21 کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ ویڈیو 2 حصوں پہ مشتمل ہے، اس لیے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے، یہ آپ کے لیے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ 2023، 20 اور 21 کے معاملات دیکھیں گے، اور 2024، 25 دوسرا حصہ، 2 پارٹس ہے۔ اگر آپ کو اپنے بارے میں کچھ بھی جاننا ہے تو ہمارا نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی۔ آپ فون مت کیجیے گا، آپ وائس نوٹ یا ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں ہمارے نمبر پہ، ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی۔ ویڈیو اچھے لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پہلا حصہ 2023 کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کا ہم ایک اوور ویو لیتے ہیں اپنے برڈ چارٹ کے حوالے سے۔ جیسے کہ میں نے بتا دیا، آپ رابطہ کیجیے گا، یہاں پہ ہم ایک اوور ویو لے لیتے ہیں۔ یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں سیجیٹیریس یا برج قوس والوں کی، یاد رکھیے گا، اگر میں 2025 میں کسی کی سکس سینس بہت اچھی دیکھ رہا ہوں، یا کسی کی روحانیات بہت اچھی دیکھ رہا ہوں، کسی کو الہام ہوتا دیکھ رہا ہوں، کسی کے خواب سچے ہوتے دیکھ رہا ہوں، تو وہ ہے برج قوس والے۔ آپ کے روحانی امور کا جو سیارہ ہے پلوٹو، وہ آپ کے دولت کے گھر میں ہے، اور یہ دولت کے گھر میں رہے گا 2.5 سال۔ 8 مارچ 2023 کو یہ انٹر ہوگا، اور ستمبر 2025 تک وہاں پر یہ رہے گا۔ یہ 20 سال سے زیادہ عرصہ اب آپ کے دولت کے گھر کا مہمان رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو کمانے کے وسائل ہے یا ذرائع ہے، ان پر یہ اثر انداز بہت زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، زحل جو ہے وہ یہاں سے تیسرے گھر میں ہوا ہے، اور وہ یہاں سے نکل جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کے ایموشنز پر بہت اثر پڑے گا۔ اب اگر اس میں آسان لفظوں میں بیان کروں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی ایموشنل لائف کا آغاز ہونے والا ہے، اور اگر آپ نے دماغ کی بجائے دل سے کام کیا تو 20 سال بعد آپ وہاں پہ کھڑے ہوں گے جہاں پہ آپ کو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں تو پھر CSS کر رہے تھے، پہلے پاکستان میں بہت رجحان تھا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں، انجینئر ہیں، کیمیکل انجینئر ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں، نیٹ ورکنگ سیکھ رہے ہیں، وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ رہے ہیں، وہ ڈیٹا سائنس سیکھ رہے ہیں، وہ کرپٹو سیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جس جگہ پہ وہ تھے اس جگہ انہیں ہونا نہیں چاہیے تھا، اور جس جگہ ہونا چاہیے تھا اب وہ ان ہو رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، ایسی رہے گی۔ پیسے تو آپ کے پاس آئیں گے لیکن اس کے ساتھ آپ کی ٹریولنگ بھی بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ اور زہرہ یہاں پر کچھ عرصے قیام کرے گا، تو جو لوگ بیرون ملک سفر یا اعلیٰ تعلیم یا بیرون ملک روزگار کے لیے جانا چاہتے ہیں، 2023 جو تھا وہ ان کے لیے بہت اچھا تھا، اور بہت سے لوگ باہر اس ٹائم میں گئے بھی ہیں۔ اگر آپ پاکستان کا ٹائم پیریڈ دیکھیں نا، کون سے لوگ زیادہ عرصے میں گئے ہیں، تو 2023-24 میں آپ کو نظر آئے گا کہ بہت ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ 60% ناکام ہے، اور اس کی ناکامی کی وجہ کہ وہ ریمیڈیز نہیں کی جو ان کو کرنی چاہیے تھی۔ جو میں آپ کو سمجھاتا آیا ہوں، ہمیشہ آپ کو ایک سکسیس فارمولا دیتا آیا ہوں کہ اس کو فالو کریں اپنے سکسیس کے لیے، چاہے آپ باہر جانا ہو، چاہے ٹریولنگ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن آپ بس بادشاہ بندے ہیں۔ اگر ہم آپ کی کیریئر کو دیکھتے ہیں تو مالی اعتبار سے 2023 آپ کا بہت اچھا تھا، پلوٹو کی منتقلی ہو گئی ہے، تو اگر آپ ٹریڈنگ سے وابستہ ہیں کسی بھی، تو 2023 بہت اچھا رہا ہے آپ کے لیے، آپ کی آمدنی بھی بڑھی ہے، نئے نئے تجربات ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے نئے بزنس شروع کیے تھے 2023 میں، ان کے لیے بہت اچھا تھا، آن لائن کام میں بڑا اضافہ ہوا تھا، ای کامرس کے اندر بہت زیادہ لوگ ان ہوئے تھے، بڑا منافع بخش بھی تھا، آپ کی چھٹی اس بھی بہت اچھی طرح سے کام کر رہی تھی، اور مالی معاملات میں بھی آپ کو کام کر رہی تھی۔ میں نے اب بتایا مالی معاملات میں آپ کو بہت بڑا فائدہ میں نے بتا چکا ہوں جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ جو لوگ فارمیسی میں آئے تھے 2023 میں، وہ اس وقت 1 سے 2 دکانیں، یا اس دکان سے گھر، یا بچوں کی تعلیم، یا باہر کے ٹرپ بہت لگا چکے ہیں۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا۔
अब अगर 2025 तक हम कौन सा कारोबार करें, मेरे से पूछे तो फूड सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, होटलिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, आपको वो करना पड़ेगा। इस 2023 से लेकर सितंबर 2025 तक जिस चीज ने 2024 में मैं उसका जिक्र करूंगा और आगे जाकर आपको पता लगेगा। आपके ताल्लुकात जो है वो अप्स एंड डाउन्स खानदान के साथ लगे रहे हैं, लेकिन नए मेहमान की आमद जो है वो 2023 में हमें देखने को मिली है, और ये बैरून मुल्क में जो लोग रह रहे थे उनके साथ बहुत हुआ। ये नया आने वाला शख्स जो था, या औरत थी या मर्द था, एक तो लव मैरिज थी आपके बच्चों की जो बैरून मुल्क रह रहे हैं, और दूसरा ये था कि ये ना आपके कबीले का था, ना आपके मजहब का था, ना आपके मुल्क का था। बड़े ही मसाइल ने यहाँ पे जन्म लिया है। अगर आपकी मोहब्बत को हम देखते हैं, आपकी बुर्ज के वाले से बात करें, 2023 में तो शदीद तरीन टकराव रहा है, कुव्वत में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन 2024 जो है उसमें कुव्वत में भी इजाफा होगा और आपको कोई मिलेगा भी, जिसका मैं आगे जाकर जिक्र करता हूँ। किसी खास हस्ती से आपकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट एक लाइन थी, आर या पार वाली लाइन आपने 2023 में देखी है। या तो मोहब्बत थी या नहीं थी, या सिर्फ जुदाई थी। छठी, इसने माली मामलात में बड़ा अच्छा काम किया, आपने बड़ा पैसा कमा लिया है, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर किसी को नुकसान पहुंचाकर या बगैर नुकसान पहुंचाए आपने पैसा तो कमाया। माने ना माने बोला था बात, आपने पैसा कमाया। सेहत के हवाले से भी आपके मसाइल लगे रहे, खास तौर पर दिल के मसाइल और आपकी पिंडलियों और टखनों वगैरह के मसाइल ने आपको बड़ा खराब किया है। ठीक है, तो ये मामला जो थे ये आपके साथ इस 2023 में जो है वो लगे रहे हैं। अल्लाह ताला की जात बेहतर करने वाली है। अब हम करेंगे 2024 की बात और उसके साथ हम देखेंगे 2025। शुरू करते हैं। लेकिन जो हम आगे हैं 2024 में और 2025 के हवाले से एक अमूमी जायजा लेंगे। जायजा ले रहे हैं हम पूरे बोर्ड का। ठीक है, अगर आपने स्पेसिफिक तो वो फिर आपका, मैंने बता दिया है कि आपको देखना पड़ेगा क्या, आपको देखना पड़ेगा अपना बर्थ चार्ट। ठीक है, 2024 का अब हम अमूमी जायजा लेते हैं और इसमें तमाम चीजें हम देखते हैं। 2024 जो था, बुर्ज जो ज़ोहल था क़ुव्वत में दाखिल हो गया था और सेहत के मसाइल जो थे वो तवज्जो तलब हो गए थे। 2024 बहुत ज्यादा तवज्जो तलब रहा है। घर की जिम्मेदारियां जो थी वो आपके ऊपर आई हैं, रूहानियात जो थी वो आपका चल रही थी, और घर के मामलात में आपको बहुत ज्यादा तवज्जो देनी पड़ी है। ठीक है, देखिए अब आपका यूरेनस जो है वो गुज़िश्ता 30 सालों से, मैंने आपको बताया प्लूटो और यूरेनस का आपका बहुत ज्यादा जिंदगी में असर रहेगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा 2024 आपकी समाजी मकबूलियत में बड़ा इजाफा लेकर आएगा, और ये मकबूलियत आपकी 2025 सितंबर तक आपको बड़ा फायदा देने वाली है। अगर आप इस दौरान इल्मी तौर पर कोई कामयाबी ले गए, कोई कोर्स ऐसा कर गए, कोई ऐसी अचीवमेंट कर गए, कोई डिग्री ऐसी ले गए जो आपको समझते हैं कि आपके लिए है, तो फिर मेरा भाई अगले 20-30 साल आपकी परवाज है। तो जो आप कोई गलत किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया, किसी गलत यूनिवर्सिटी में ले लिया, किसी गलत एजुकेशन में ले लिया, तो फिर अगले 30 साल आप सोचेंगे आपके साथ हुआ क्या है। आपके कैरियर को जरा तफसील के साथ देखते हैं। जब हम कैरियर की बात करते हैं तो प्लूटो गुज़िश्ता 30 साल से आपके दौलत के घर में है और यहां से अब रुखसत होने वाला है। और देखें, ये मैं बता रहा हूं सितंबर 2025 तक ये रहेगा। ठीक है, यहां पे हुआ ये, पैसे आप संभाल नहीं सके और बहुत चौका दिवालियां निकल गया। अब अगर हम नवंबर में बैठे हुए हैं और मैं बता रहा हूं सितंबर 2025 तक के हालात, तो आप में से बहुत का दिवालिया निकल चुका है। ठीक है, अब आप मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कितने हैं जिन्होंने अपना दिवालिया निकाल लिया है। लेकिन याद रखिएगा कि मैं रूहानियात पे बार बार तवज्जो दे रहा हूं। जो तो रूहानी अमूर समझ गए थे, रूहानियात में जिनका कदम पड़ गया था, जिनको इल्हाम बड़े अच्छे हो रहे थे, जिनकी छठी इस बड़ा अच्छा काम कर रही थी, जो लोगों के बारे में बड़े अच्छे अंदाजे लगा रहे थे कि ये शख्स जो है मुझे पैसे दे रहा है, ये जो कर्ज दे रहा है ये ठीक बंदा है, ये जो बंदा मेरी पार्टनरशिप में आ रहा है ये ठीक बंदा है कि नहीं, ये जो बंदा मेरा जूनियर है ठीक है कि नहीं, ये एम्प्लॉय ठीक है कि नहीं, जो रूहानी तौर पर, इल्हामी तौर पर इस चीज को समेट गए, उनकी दौलत में तो इजाफा हुआ है, बहुत अन्ना हुआ, तो उनके इजाफा हुआ है, अन्ना इजाफा हुआ है। ठीक है, लेकिन जिन्होंने इसको नहीं सोचा उनके लिए तो फिर मैं अब यही कह सकता हूं कि आपको सोचना चाहिए था। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे बेहतर करेंगे, लेकिन अभी भी आपके पास सितंबर 2025 तक का टाइम है, या तो आर या पार।
ठीक है। 2024 घरेलू तौर पे अच्छा नहीं रहा आपका। बहन भाइयों से तकरार, वालिदैन से तकरार, इन लॉस के साथ तकरार, दोस्त यार, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहे। उसकी वजह है लोग आपको समझ नहीं सके। याद रखिएगा 2024 में बहुत से लोग डिप्रेशन में चले गए सिर्फ इसलिए कि लोग उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर सके, लोग उनको समझ नहीं सके, लोग उनकी बात को नहीं समझ सके कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा मसला आपको अपने घर में रहा है। दोस्तों में इतना मसला नहीं रहा, लेकिन घर में रहा। लेकिन इसकी वजह आप खुद भी हैं और आपका मूड स्विंग भी है, ठीक है, वो भी बड़ा असर डालता है। याद रखिएगा कुदरत की वजह से जो आजमाइश और जो इम्तिहान आती हैं उनकी वजह जो है, उनकी वजह आपको तैयार करना होता है। आप सोना है, कुदरत आपको आग में डालती है, तपाती है और फिर आपको कुंदन बना के निकालती है। अब ये पोजीशन आपकी सितंबर 2025 तक रहेगी। मैंने पिछले साल 2023 की एक बात की थी, नए मेहमान की आमद किसी वाले से भी थी, लेकिन 2024 में ये बहन की तरफ से हो सकती है। नए मेहमान की आमद बेटी की तरफ से कम है, बहन की तरफ से। खास तौर पर जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात हल करे, क्योंकि बहनें उनके कंट्रोल में बहुत कम होती हैं। बैरून मुल्क है, हर कोई अपने हक के लिए लड़ता है, हर कोई अपने के लिए आवाज बुलंद करता है। तो बहनें जो है वो किसी ऐसे शख्स को आप से मिलवाने ला सकती हैं, फिर आप कहेंगे हम यूरोप भाई क्यों थे। लेकिन चले कोई नहीं, मोहब्बत के मामलात को देखते हैं तो कोई खास हलचल नजर नहीं आ रही। लेकिन आपकी मोहब्बत में जो मैंने बताया ना 2023 ठंडा था, 2024 में बड़ी हलचल है। किसी खास शख्स से मुलाकात हो चुकी है या होगी, अब तो पीछे खैर नवंबर है। किसी खास शख्स ने आपके एंट्री मार दी है, ये पुराना भी हो सकता है, नया भी हो सकता है, लेकिन ये था से इसकी एंट्री हो चुकी है। समाज में आपकी गैर मामूली तौर पर मकबूलियत में इजाफा हो चुका है और इसको आप खाएंगे अगर आप खाने समझदार हुए, अगर आप मीडिया से हैं, अगर आप जर्नलिज्म से हैं, अगर आप टिकटॉकर हैं या आप इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी हैं, तो ये वो वक्त है जिसमें आपने खाना ही खाना है। तालीमी व अमली सरगर्मियों के दौरान मोहब्बत से आपका टकराव हो सकता है। बार बार बता रहा हूँ, ये बात मैं 3 दफा बताऊंगा, इसका अंदर मैं कितना जोर दे रहा हूँ कि तालीमी व अमली सरगर्मियों जॉब्स पर मोहब्बत से आपका टकराव हो सकता है। मोहब्बत से टकराव हो सकता है नौकरी पर या जहां पढ़ते हैं वहां पर। अब इस बात की अहमियत को समझ जाए ना। सेहत के हवाले से खसूसी तवज्जो देनी होगी। सेहत के हवाले से 24 और 25 बहुत ज्यादा रहेगा। दिल का आर्जा लाहक हो सकता है। दिल के मामलात में ना खवातीन और मर्द दोनों ने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। जरा सी परेशानी हो तो डॉक्टर को चेक कराइएगा। आपने रिस्क नहीं लेना दिल के मामलात में खास तौर पर, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक एंड शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, दुआ में याद रखा। शुक्रिया।